Good morning, student of class 10th. Let's start our unit number 7, database development, and today I'm going to continue the session number 1, that is database concept. In this session, we learn about what is database management system, and what is the need for database management system. Now moving ahead, we are going to cover advantages of the database management system, after that applications of database management system, later relational database model, and after that type of database models. So let's continue with the advantages of database management system. So what are the advantages? First is the ability to update and retrieve the data. We can easily update the data, as well as once we are finished with updating with the data, we can easily retrieve that. Retrieving means we can access the data again and again as per our need. Okay. Next is support concurrent update. It means when more than one or two people are there who update साइमल्टेनियसली फ्रॉम अदर सिस्टम्स. इट मीन्स जैसे ज़्यादा यूज़र्स हैं, तो अगर कई सारे यूज़र एक टाइम पे अपडेट करते हैं तो वो अपडेट एक्सेप्टेबल होगा, एंड दैट अपडेट इज़ गोइंग टू बी मेड बाय इन database. After that, we are having recovery of data. It means that if your data is loose or damaged, then it can be recovered. Sometime there may be a crash in the computer or anything, so we can cover your data again. Next is security. So you can secure your database by applying some passwords, because the person who is not having the password, that is the person who is unauthorized to access the data, is not able to access your data. Next is data integrity. Data integrity is there are some set of rules that DBMS provide, okay, and that rules are going to be fulfilled while inputting the data. Next, control data redundancy. So what is redundancy? Redundancy is the duplicacy of the data. We cannot completely eliminate the redundancy, but we can anyhow reduce it. That is, we can control the redundancy, we can control the duplicacy of the data. Moving toward the next topic, we are having data sharing. In data sharing, the data stored in the database can be shared among multiple users. So whatsoever data you are having, you can easily share the data with the multiple users. Okay. When we are talking about the file management system, it is not easy to always share the file with one another or with the person who is at the distance. But with the help of computer or with the help of the database management system, we can easily share our data. Next, we are having ease of application development. In ease of application development, the user can easily able to make the software as per their need. There are various application programmers who make the programs with, as per the user's need. Okay, that maintain the concurrent access, security, data integrity, etc. नेक्स्ट वी आर हैविंग एप्लीकेशन एरियाज ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो जहाँ जहाँ भी आपको डाटाबेस मतलब जहाँ जहाँ भी आपको अपने यूज़र्स के कस्टमर्स की डिटेल्स को सेव करना होगा, वहाँ वहाँ आपको डाटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी. नाउ डेज एवरी बिजनेस, हर बिजनेस में डाटाबेस की ज़रूरत पड़ती है. लेट्स रीड आउट द एरियाज वेयर वी नीड द डाटाबेस सिस्टम. सो फर्स्ट वन इज़ द ट्रैवल इंडस्ट्री. ट्रैवल इंडस्ट्रीज़ में आपकी एयरलाइंस हो गए, रेलवेज़ हो गए, बसेस हो गई, कैब्स हो गए, होटल्स हो गए. यहाँ सब आपकी डिटेल्स को स्टोर किया जाता है. जो भी इनके कस्टमर्स हैं, उनकी बुकिंग्स हैं, कब बुकिंग हुई, कहाँ से बुकिंग हुई, कहाँ डिपार्चर है, ईच एंड एवरीथिंग. नेक्स्ट वी आर हैविंग बैंकिंग एंड फिनांस. इसमें किस कस्टमर ने लोन लिया है, कब लिया है, कितने का लोन लिया है, किसका अकाउंट है, अकाउंट में कितना अमाउंट है, सारी डिटेल्स. ओके. नेक्स्ट इज़ एजुकेशन. एजुकेशन में स्कूल एंड कॉलेजेस आपके इंक्लूड होते हैं. इट मीन्स कौन से बच्चे ने एडमिशन लिया है, कब एडमिशन लिया है, कौन से ईयर में पास आउट हुआ है, कितनी फ़ीस सबमिट है, वेरियस थिंग्स. लेटर ऑन ई कॉमर्स. ई कॉमर्स मीन्स सेलिंग एंड बाइंग गुड्स ऑनलाइन. इट मीन्स ऑनलाइन बिजनेस को हम क्या कहते हैं,
ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स में क्या होता है, आप लोग देखते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कई सारे प्रोडक्ट्स दिखते हैं आपको, तो उन सब की प्रोडक्ट्स की डिटेल कहीं ना कहीं तो मैनेज होती है, एंड द प्लेस देयर द डिटेल इज मैनेज इज नोन एज द डाटाबेस। इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में आपके हॉस्पिटल्स की डाटाबेस आ जाते हैं, लाइक मेडिकल, पेशेंट को कब एडमिट किया, कब डिस्चार्ज करना है, कौन कौन सी मेडिसिन देने हैं, क्या क्या ऑपरेट हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग इज मेंटेन इन द डाटाबेस। नेक्स्ट इज डिजिटल लाइब्रेरी एंड पब्लिशिंग, जैसे आपके स्कूल की भी एक ई लाइब्रेरी है, ई लाइब्रेरी में भी कई सारी बुक्स हैं, यू कैन रीड द बुक्स फ्रॉम देयर। सो ई लाइब्रेरीज में क्या होता है, हमारा एक डाटाबेस होता है जहाँ पे हम मेंटेन करते हैं कि कौन सी बुक किस एज ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, कौन सी क्लासेस के लिए कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल है, so that you can easily apply the filter and make your search easy. Later is next point is human resources. Human resources में कौन आ जाता है, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हैं, उनके बेनिफिट्स हैं, उनके टैक्सेस हैं, एवरीथिंग इज stored in some place. Next is component of database management system. तो फर्स्ट कंपोनेंट्स में क्या आता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्या क्या मेन पार्ट हैं। तो फर्स्ट वन इज़ द यूज़र वो इंसान है जिसके लिए डाटाबेस को बनाया गया है, लाइक जो स्कूल का डाटाबेस है उसे कौन यूज़ कर रहा है, तो वो कौन हुआ, यूज़र हुआ। ओके, नेक्स्ट इज डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो पर्सन है जो डायरेक्ट करेगा क्या काम करना है, कैसे काम करना है, और सब चीज़ों को, सारी एक्टिविटीज़ को मेंटेन करेगा। नेक्स्ट इज़ द एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जो हम किसी के लिए बनाते हैं, प्रॉपरली डिज़ाइन करते हैं ताकि उस इंसान की नीड्स को फुलफ़िल किया जा सके। और जो आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए बनाया जाता है। ठीक है, moving next we are having relational data model. So anything in which we are storing our data in the form of rows and columns are known as the relational database model. Relational data model में क्या होता है, relationships बताई जाती हैं, क्या relationships exist करती हैं, एंड इन डाटाबेस मतलब रिलेशनल डाटाबेस जो आपकी रोज़ हैं दे आर नोन एज द इंस्टांसेस एंड द कॉलम्स आर द फील्ड। सो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं रिलेशनल डाटा मॉडल की, फर्स्ट इज अ रिलेशनल डाटाबेस का अपीयर्स एज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, ठीक है, दैट इज कलेक्शन ऑफ रिलेशंस। नेक्स्ट इज देयर आर सेट ऑफ ऑपरेटर्स फॉर पार्टीशनिंग एंड कंबाइनिंग, अलग करने के लिए भी और कंबाइन करने के लिए भी कई सारे ऑपरेटर्स हैं। नेक्स्ट इज द कनेक्शन आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा, द यूज़र डू नॉट नीड टू नो हाउ द डाटा इज स्टोर्ड फिजिकली। जब हम डाटा रिलेशनल डाटाबेस में यूज़र को सिर्फ डाटा इनपुट करना होता है, डाटा कैसे स्टोर हो रहा है वो सब उसको जानने की ज़रूरत नहीं है, वो उसका एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो होगा उसने सब ऑलरेडी सेट कर रखा होगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग देयर इज़ फुल डाटा इंडिपेंडेंस, दैट इज़ डाटा इज़ इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट वी आर हैविंग just a minute, type of databases. So when we are talking about type of databases, we are having two type of database. First one is the flat file database and the second one is the relational database. फ्लैट फाइल डाटाबेस में क्या होता है, जैसा कि ये टेबल आपको विजिबल है, देयर इज़ ओनली अ सिंगल टेबल एंड ऑल द रोजेस एंड कॉलम्स आर स्टोर्ड इन दिस सिंगल टेबल। तो अगर छोटा डाटाबेस है तब तो ये बेनिफिशियल है, बट अगर डाटाबेस बड़ा है तो इसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। हमें इसमें जितनी भी फील्ड्स जितनी भी सेव करनी है वो सब एक ही टेबल में सेव करनी होंगी। दिस इज़ फ्लैट फाइल डाटाबेस सिस्टम। When we are talking about the relational databases, it means we are having various table and we connect those tables with the help of some relations. Okay, like अगर हम स्कूल में बात करें, वी आर हैविंग मेनी रजिस्टर्स। एक रजिस्टर होता है जो आपके क्लास टीचर के पास होता है, एक ऑफिस में होता है, एक दूसरे टीचर के पास होता है। तो दे रजिस्टर्स में हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ऐसा नहीं कि सब रजिस्टर्स में सारी डिटेल्स दी होंगी, बट क्या होता है, वी आर हैविंग एस आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, सॉरी,
वी आर हैविंग SR नंबर। तो SR नंबर के थ्रू हम सारे रजिस्टर्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर लेते हैं। एंड SR नंबर ऑफ एनी स्टूडेंट कैन नॉट मैच विद दी अनदर। हर बच्चे का SR नंबर अलग होता है। आपका नेम सेम हो सकता है, योर फादर नेम भी सेम, मे बी मोबाइल नंबर भी सेम है, एंड समटाइम मे बी एड्रेस इज ऑल्सो सेम, बट SR नंबर इज़ द थिंग दैट इज़ नॉट सेम फॉर 2 पर्सन। 2 बच्चों का SR नंबर सेम नहीं हो सकता है। सो वी सेलेक्ट SR नंबर एज अ प्राइमरी की। हम SR नंबर को क्या बना देंगे? प्राइमरी की। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग रिलेशंस कैसे होते हैं, ठीक है। सो द लिंक बिटवीन द डाटाबेस, ओके, is known as relationship. The link between the database tables is known as the relationship. कौन कौन से relationship होते हैं? 1 to 1, मतलब एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में, दिस इज 1 to 1 relationship. एंड नेक्स्ट वी आर हैविंग, मान लीजिए ये आपके 2 डाटाबेस हैं, ये एक ही से कनेक्ट है, दिस इज मैनी टू 1, कई सारों से एक ही, और यहाँ पे भी है तो ये 1 to many, दिस पोर्शन अगर हम बात करें तो many to 1, एंड दिस पोर्शन की बात करें तो 1 to many. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग डाटाबेस सर्वर। तो डाटाबेस सर्वर क्या होता है? डाटाबेस सर्वर आर डेडिकेटेड कंप्यूटर्स दैट होल्ड द एक्चुअल डाटाबेस, एज आई टोल्ड यू लेटर ऑल्सो। क्लाइंट सर्वर मॉडल, क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है? देयर इज़ अ सर्वर हु इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट्स व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ठीक है। जो भी आपका डाटाबेस होगा वो किसके पास होगा? सर्वर के पास। क्लाइंट को जब जैसी ज़रूरत होगी सर्वर वैसी चीज़ें उसको प्रोवाइड करवाएगा। दैट इज सर्वर ऑन द टॉप एंड क्लाइंट्स आर एट द बॉटम्स। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग फ्रंट एंड एंड द बैक एंड। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और यू आर यूजिंग एनी ऑफ द एप्लीकेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो आपको कभी भी नहीं दिखता कि आपका डाटाबेस कहाँ पे भी मेंटेन है, ठीक है। दैट इज़ वाई वी ऑलवेज कॉल दैट डाटाबेस एट द बैक एंड, चाहे हम उसे MS Excel में यूज़ कर रहे हैं या किसी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में यूज़ कर रहे हैं। एंड द फ्रंट, ऑन द फ्रंट आपको क्या दिखते हैं? आइकन्स, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब आइकन्स दिखते हैं, ग्राफिक्स दिखते हैं। यू जस्ट क्लिक ऑन द ग्राफिक्स एंड यू गॉट द डिटेल्स, but you are not able to see the database and where the database is stored. So the database always stored at the back end, and the graphics you are using, that is always at the front end. So with this we finished with our session number 1. Tomorrow we are going to learn about our session number 2. Thank you, student.